سعید شفیق صاحب جو کہ فارمر پریزیڈنٹ ہے KCCI سے، ان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود، بہت بہت شکریہ. اپنی کھری کھری آرا کے لیے جانے جاتے ہیں. ان سے جانیں گے کہ اوور آل میکرو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کیا ہیڈ ونڈز ہیں، یہاں کیا امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، واٹ شوڈ بی دا کور اسٹریٹجی رائٹ ناؤ. دین وی ہیو ود اس آن دا سیکنڈ نمبر وی ہیو ندیم شہزاد صاحب جو کہ فائنینشیل جرنلسٹ ہیں. ان سے جانیں گے کہ عام عوام کیا سوچتی ہے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. دین ویل بی جوائنڈ سون بائی راشد مسعود صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. سو سب سے پہلے سعید صاحب آپ سے ایک فیڈ بیک لینا چاہوں گا. آن ون سائڈ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز بڑھتی چلی جا رہی ہیں جس کا امپیکٹ اگین پاکستان میں پیٹرولیم کی پرائسز پہ بھی آنا شروع ہوئی ہے. گورنمنٹ از پاسنگ آن دا افیکٹ بیکاز کہیں ایسا نہ ہو کہ فسکل سائڈ سے ہم بہت ڈیمیج نہ کر دیں. سو دیٹس اگین اے ویری پروڈنٹ اسٹریٹجی. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کون نمبرز میں گورنمنٹ از کنسسٹنٹلی شوئنگ انٹینٹ ٹو پاس آن دی افیکٹ ٹو دا جنرل پبلک. واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کووڈ کا جو گزشتہ 2 سال گزرے ہیں ان کا بڑا امپورٹنٹ ایک ایسا معاملہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کموڈیٹیز کی پرائس تو اپنی جگہ گئی ہیں اوپر، مگر جو فریٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب کووڈ کی وجہ سے آپ کی تجارتی سرگرمیاں جو تھیں وہ معطل ہوئی تھیں تو مختلف جگہوں پہ کنٹینرز جو تھے وہ اسٹک ہو گئے تھے اور ان کی موومنٹ میں بڑا پرابلم تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ جس وقت آپ کی تجارت یا ورلڈ ٹریڈ جو تھی وہ نارمل سچویشن کی طرف آنی شروع ہوئی تو اس میں فریٹ جو تھا وہ کئی گنا 100 گنا جو ہے وہ فریٹ اوپر چلا گیا. اور فریٹ کی وجہ سے آپ کا جو تھا وہ کاسٹ جو تھی کموڈیٹیز کی وہ زیادہ اوپر کی طرف چلی گئی. دیکھیں بکر کہیں ہماری جو سچویشن ہے اوور آل اکانومی کی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے 2 تناظر ہیں، 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہمیں بڑا نازک نظر آتا ہے اور بہت ہمیں اس میں محتاط اپنے آپ کو رکھنا ہے اور بہت کروشل ٹائم ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے. خاص طور پہ اس وقت افغانستان کی جو سچویشن ہے، پوری دنیا کا فوکس اس وقت افغانستان پہ ہوا ہے اور وہاں کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت اچھی نہیں ہے اور اس کے لازمی اثرات آپ کے اوپر اور آپ کی معیشت کے اوپر جو ہے وہ پڑ سکتے ہیں. دوسری جو چیز ہے جو آپ نے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے بات کی، دیکھیں یہ ایک اچھی اسکیم تھی اور میں آپ کے ہی بہت سارے پروگراموں میں جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نہیں تھی اس سے پہلے بھی میں کہتا تھا کہ آپ اپنا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اوورسیز پاکستانیز کو اگر آپ انسینٹیوز پاس آن کریں گے، ان کو عزت دیں گے، ان کو مرتبہ دیں گے تو یقیناً ان کا اعتماد اور جو ہے وہ بڑھے گا. آج ہم اس میں اور مزید اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ میکسیمم سائٹ پہ آپ آ گئے، $2.3 بلین اس میں اور اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ میں خود 3 سال پاکستان سے باہر رہا ہوں تو مجھے لوگوں کی سوچ، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے. دیکھیں ہر وہ پاکستانی جو پاکستان سے باہر جاتا ہے خاص طور پہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں ان کو نیشنلٹی نہیں ملتی وہاں کی، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں. دیگر مغربی ممالک میں اور امریکہ میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ پیریڈ گزارنے کے بعد آپ کو کنسیڈر کر سکتے ہیں نیشنلٹی کے اوپر اور عموماً جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی ان کی مشکل ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو وہیں بسا لیتے ہیں. تو ریمیٹنسز ان کے فادر، فور فادرز، گرینڈ فادرز یہ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ریمیٹنسز آتی ہیں. مڈل ایسٹ میں جو لوگ ہیں ان کو ایک دن بہرحال پاکستان آنا ہوتا ہے اور جب آنا ہوتا ہے تو ہمیں ایک گائیڈنس پروگرام بھی ان کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ جب آپ وائنڈ اپ کر کے وہاں سے آ رہے ہیں تو آپ نے جو سرمایہ جمع کیا اپنے ساتھ وہ ان شیپ آف ڈالرز یا ان شیپ آف فورن کرنسی آپ لے کر آ رہے ہیں ریمیٹنسز میں، تو آپ ان کو یہاں گائیڈ کریں کہ ان کا وہ پیسہ بجائے اس کے کہ وہ زمین میں، پراپرٹی میں اور ایسی چیزیں جو غیر تعمیراتی ہیں، غیر ترقی وہ ہیں، مجھے صحیح لفظ نہیں مل رہا اس کے لیے، تو اس کے بجائے اگر آپ دوسری چیزوں میں استعمال کریں جس سے آپ اپنی پروڈکشن میں اپنی دیگر اس میں استعمال کر سکتے ہیں. پروڈکٹیو کیپٹل. جی بالکل ٹھیک ہے جی. بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ہم وی آر جوائنڈ بائی راشد مسعود صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ندیم صاحب واٹ از یور فیڈ بیک آن دیٹ؟ بیکاز اسی کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اب کنسسٹنٹ ایفرٹس کر رہا ہے کہ جو افغانستان میں ڈیولپنگ سچویشن ہے اس کی وجہ سے جو پاکستان سے ڈالر آؤٹ فلو ہو رہا ہے اس کو کسی طریقے سے روکا جائے. These are also some of the key measures جو اس کے ساتھ ساتھ لگژری امپورٹس کے اندر بھی کیش مارجن کو 100% کر دیا گیا ہے. ہاؤ ڈو یو سی دیز میجرز؟ جی بالکل باقر اس میں جو حالیہ جو اسٹیٹ بینک کی جو آرڈرز آئے ہیں اس کے تحت تو لیکن اس وقت دیکھا جائے تو مجموعی طور پر پاکستان کے اوپر جو عالمی دباؤ ہے اور معاشی چیلنجز کا ہمیں سامنا تو ہے بہت زیادہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسی صورتحال کے اندر بھی پاکستان اب بھی معیشت کی جن حدوں کو چھو رہا ہے، ہم یہ کہیں گے کہ ان حالات کے اندر اپنے محدود وسائل اور جو بھی کوششیں کی جا رہی ہیں وہ بالکل درست ہیں. لیکن کووڈ کی جو بات صورتحال بتائی گئی، جو عالمی اس وقت تناظر کے اندر جو صورتحال
हाल मीशत की पूरी दुनिया की वर्ल्ड वाइड, उससे अगर पाकिस्तान के साथ उसका तकाबली जायजा भी लिया जाए तो पाकिस्तान बहुत बेहतर है इस सूरत हाल के अंदर भी। अब अफगानिस्तान के साथ अगर बात की गई तो अब स्टेट बैंक ने चूंकि एक माह तक जो करेंसी ले जाने का $6000 के जो एक हद रख दी है कि $6000, ताकि डॉलर के भाव को भी कंट्रोल किया जा सके। और उसके साथ ही हमारी स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी ये अहकामात अब सामने आ चुके हैं कि जिस तरह के अब अगर $10,000 से ज्यादा की अगर रकम है तो उसमें चेक का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके अलावा अब वो सहूलियात तो जरूर दी जानी है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ एक स्मगलिंग का बहुत बड़ा एक इशू था, जहां से ये लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी जितनी भी आइटम्स थी जो कि नॉन कस्टम पेड हमारे पास मुल्क में आती थी, जिससे हमारे जो है मईशत पर उसके बहुत बुरे असरात मरतब हो रहे थे। इसके कंट्रोल करने के लिए देखें कि एक तो बॉर्डर पर बाड़ लगाने का अमल भी किया गया था, दोनों मुल्कों की एक मुश्तरका कार्रवाई थी। अब हालिया जो सूरत वहां पर जो चेंज हुई है उसके बाद जो बिजनेस की जो डेवलपमेंट अब आगे आनी है, उनके साथ कई ऐसी चीजें जिनको आलमी इदारे भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनको मद्देनजर रखते हुए अब ऐसे हमें इकदाम करने पड़ेंगे कि अफगानिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है और वहां पर सबसे बड़ा ये कि ट्रांजिट जो पाकिस्तान से कि सी का जो मामला है, हमारी जितनी भी अफगानिस्तान की ट्रांजिट है पाकिस्तान के थ्रू होती है, तो इस पर उन्हें सहूलियात भी देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ डॉलर के इस भाव को भी रोकना पड़ेगा, स्मगलिंग के इश्यूज को भी रोकना पड़ेगा। जी बिल्कुल, इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए और इसके साथ साथ अब देखें कि हमारे यहाँ से अब हमेशा ये रहा है कि अगर यहाँ से गोश्त स्मगल हुआ है तो उसकी कीमतें उसके साथ पाकिस्तान पर पड़ते हैं, अगर सब्जियां चावल स्मगल हुए तो उसके पाकिस्तान पर साथ वेजिटेबल्स की एक्सपोर्ट्स को भी बैन कर रहे हैं, को आप देख लें, लोकल प्राइसिंग पे कंट्रोल किया इन तमाम चीजों को अगर एक पैरे में इसका एक पैरामीटर्स बना लिए जाएं, उनके अंदर रहते हुए और बिजनेस के प्रॉपर सहूलियत देते हुए किया जाए तो उससे पाकिस्तान की मईशत पर उसके बड़े अच्छे आई थिंक वेरी गुड पॉइंट्स राशिद साहब। Canada record inflation, US record inflation. Everybody is now looking at this problem in the same lens, through the same lens as Pakistan is looking at it. There is no other option but to increase the prices and don't let it convert into a bubble right now in the economy. What is your take on that? आज बहुत दुरुस्त बात कही आपने। 3 दिन पहले अगर आपने देखा हो कि जो ग्लोबल कमोडिटी इंडेक्स आया था उसके अंदर ओवर ईयर टू ईयर बेसिस के ऊपर इस साल बहुत सारी कमोडिटीज़ की प्राइस 100% से ज़्यादा बढ़ गई। सिर्फ सोना और शायद चांदी की कीमत नेगेटिव में गई है पिछले साल के मुकाबले में, अदरवाइज फ्रॉम सोयाबीन, फ्रॉम ऑयल, फ्रॉम मेज, एवरी कमोडिटी हैज़ जम्प्ड, आयरन ओर। अब बुनियादी बात यह है कि इन्फ्लेशन हर जगह टच कर रहा है। पेट्रोल प्राइसेस हमारे पड़ोसी मुल्क में पाकिस्तान से ज़्यादा हैं, वहाँ की करेंसी के मुताबिक 107 रुपए का 1 लीटर मिल रहा है, जबकि पाकिस्तान में आपके सामने अगर करेंसी कन्वर्जन को देखें तो अभी तक सस्ता है। बात बुनियादी तौर ये है बाकर साहब, जो कि मैं हर फोरम पे कहता हूँ, हर जगह बात करता हूँ, कि हमें बाज़ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जो कि अबव एंड बियॉन्ड दी इकोनॉमी है, अबव एंड बियॉन्ड दी नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे ये है कि हमें आवाम का कॉन्फिडेंस इस बात पे रिस्टोर करना पड़ेगा कि देखो अगर ये प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो इसका असर बाला तबके को भी पहुंच रहा है और लोअर तबके को भी पहुंच रहा है। जब उनके पास इस किस्म की न्यूज़ आती है कि जनाब कहीं पे पनामा हो गया, कहीं पे पेंडोरा हो गया, उसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के नाम हैं, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, गरीबों के ऊपर सारा बोझ डाल देते हैं, यहाँ का पैसा उठ के बाहर जा रहा होता है। एक ये भी ग्लोबल इशू है जिसके ऊपर बाद में बात की जा सकती है, लेकिन आवाम का कॉन्फिडेंस हम अभी तक बाय नहीं कर सकते हैं। हम ये चीज़ मार्केट नहीं कर पाते हैं आम आदमी को कि देखो अगर हमारे यहाँ महंगाई है तो पड़ोस में भी है, मगरिब में भी है, मशरक में भी है। मसला सारा ये होता है कि हमारे जो आसपास के दीगर सोशल जस्टिस का और सोशल सेफ्टी नेट का जो निज़ाम है वो कतई नहीं है। अगर कनाडा में इन्फ्लेशन है, यूएस में इन्फ्लेशन है, तो एक बहुत टाइट किस्म का सोशल सिक्योरिटी नेट है। वहाँ हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे लोगों को स्टैम्प, फूड स्टैम्प मिल रही है। एहसास प्रोग्राम बारिश का पहला कतरा तो हो सकता है, मगर वी हैव टू गो बियॉन्ड दैट, बहुत आगे तक हमें जाना है। तो हमें पहले ग्राउंड रियलिटीज़ को दुरुस्त करना पड़ेगा, उसके बाद यकीनन महंगाई हमें ये बताना पड़ेगा कि जनाब इंग्लैंड में तो राइट्स हो रहे हैं पेट्रोल के लेने के लिए, पेट्रोल पंप के ऊपर। योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट द क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री हमने ये देखा है कि अब हर आदमी केपीके में उसको इंश्योरेंस मिल रही है, इंश्योरेंस फॉर ऑल। यही काम आप कनाडा में देखते हैं, यही काम आप यूएस में देखते हैं। सो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का आगाज तो हो चुका है, एंड विद इन द स्मॉल बजट दैट यू हैव, जिसमें अच्छा खासा तो पैसा आपको पुराना उधार वापस करने, उसका सूद देने में लग जाता है, उसके अंदर अहम इकदाम तो उठाए जा रहे हैं। बट योर पॉइंट इज वेरी वैलिड कि इट्स अ फर्स्ट स्टेप,
it has to be rebuilt into a proper momentum based strategy. बाकर आपने बहुत अच्छी बात की। मौजूदा गवर्नमेंट के जो 2 स्टेप्स हैं जिसके अंदर एहसास प्रोग्राम को जो एक्सपेंड किया है इन्होंने, बाकी में एक इमीडिएट मेजर की ज़रूरत थी, सोशल सिक्योरिटी एज फार एज जैसे आपने बात की, ये दीगर तमाम सूबों में भी एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और इसको लोअर बेसिस पे इनिशिएशन बहुत अच्छी है। मगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि सोशल जस्टिस लेवल के ऊपर ये बात करना कि अगर कोई मेरा पैसा यहाँ का गरीब आदमी का, यहाँ के आवाम का, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस भी हैं कि ये जा रहा है, तो उसको अगर हम वापस नहीं ला सकते तो थोड़ा सा तो कोशिश कर सकते हैं और उसको एक एग्जाम्पल बना सकते हैं। लेट्स टेक योर फीडबैक सर, व्हाट डू यू थिंक? देखें, थोड़ा सा मैं एहसास प्रोग्राम की बात की राशिद भाई ने, मैं शुरू से इस चीज़ का, ये BSP प्रोग्राम का मैं मुखालिफ रहा हूँ। मेरी नज़र में ये एक पॉजिटिव रास्ता है, वो रास्ता नहीं है जिस पे चलना चाहिए। वो अंग्रेजी की कहावत थी ना कि किसी को रोज़ मछली देने के बजाय एक मछली सिखा दो उसको हाउ टू कैच द ठीक है ना? फिश। तो फिर आपको जब आप ये सपोर्ट करते हैं तो आपको अपने कल्चर को भी देखना है कि आपका वो कल्चर जहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादातर ऐसे इलाकों में ये फीडिंग कर रहे हैं कि जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत कम है। आप लोगों का रहना सहना, उनके घरेलू हालात देखें। किसी औरत के नाम पे अगर आप दे रहे हैं तो क्या इस बात की गारंटी है कि वो पैसा उसके हाथ में रहेगा? उसका शौहर छीन के ले जाता है, उसका भाई उससे निकाल के ले जाता है। तो इन शेप ऑफ कम्युनिटी आप दें उसको कि राशन की शक्ल में कि आप जाएं यूटिलिटीज़ पे चले जाएं, जाके इस कार्ड के थ्रू आप जो है ना वो परचेजेस कर लें, दाल खरीद लें, आटा खरीद लें, चावल खरीद लें। यहाँ तक तो मैं सोचता हूँ कि भाई ये इस टाइप की सपोर्ट होनी चाहिए, ये मिलनी चाहिए बिल्कुल। इन शेप ऑफ कैश नहीं होनी आपकी चाहिए। बात बहुत अच्छी है बाकर, मैं सिर्फ ऐड ये करना चाहूंगा, बात सारी की सारी ये सर, मैं तो एक स्टेप फर्दर आगे जाने की बात करता हूँ। जैसे आपने बताया ना कि टीच देम हाउ टू कैच द फिश, मछली पकड़ना। हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो तालीम के ऊपर इन्वेस्ट करने की है और टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर। देखिए राशिद, मैं थोड़ा सा एजुकेशन से भी वास्ता रहा हूँ। मैंने सोशल जो है ना उस पर भी काम किया हुआ है, सोशल सेक्टर में। मैं देखता हूँ हम उस बच्चे को जिसको आप पढ़ाना चाहिए ना, और अगर नहीं पढ़ना चाहता, हम उसे एक माशरे का नाकारा हिस्सा समझ के छोड़ देते हैं। हम उसको ये नहीं समझते कि इसको हम इसकी जहन किधर जा रहा है, इसके जहन वहां ले जाए और वहां इसको इस्तेमाल करें ना, तो वो ज्यादा उसको। आपकी बात यही मैं कह रहा हूं दूसरा में इजाजत से कि मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी चाहिए। हमें कैश भी डिश आउट करना है क्योंकि इमीडिएट नीड है सर, तालीम भी देनी है, उनको हुनर भी देना है और उनके जहनी काबिलियत के हिसाब से अगर वो क्लास में नहीं बैठ सकता तो उसको अच्छा मोटर मैकेनिक, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाने वाला, अच्छा मोबाइल रिपेयर करने वाला। राशिद, मैं इन्फ्लेशन पर एक बहुत एक आपकी पॉइंट को भी बता दूं, पब्लिक फाइनेंस के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर वर्सेस कैश सब्सिडी में कैश सब्सिडीज का वेलफेयर इंपैक्ट ज्यादा होता है। दैट इज प्योर इकोनॉमिक्स। देखिए वो आप माशरे की सोसाइटी के हिसाब से देखें ना। क्वेश्चन इज कि द गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज द इंटरनल माइक्रो। बेरोजगारी अलाउंस यूके में भी मिलता है, मगरबी ममालिक में भी मिलता है। जो अगर कह दे कि डिक्लेयर कर दे कि जी मेरे पास रोजगार नहीं है, बेकार हूं, उसको भी पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर होता है ना। मगर आप अपने कल्चर, अपने सोसाइटी के हिसाब से देखो ना। उसके साथ साथ जी, एक तो वेलफेयर इंपैक्ट, उसके साथ साथ गवर्नमेंट इज ऑल्सो लॉन्चिंग मल्टीपल प्रोग्राम जिसमें कारोबार में आसान लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं। एग्रीकल्चर आउटपुट इंक्रीज करने के लिए अभी कॉटन के आपने देखा है कि रिकॉर्ड नंबर्स आए अभी रिसेंटली जो नंबर्स रिलीज हुए हैं, और मजीद एक्सपेक्टेड है कि दूसरी क्रॉस भी इंप्रूव होंगी। बट द क्वेश्चन इज जो साइमल्टेनियसली मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी की बात की, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। जी प्लीज क्विकली। देखो बाकर, मैं आपको एक बात बताऊं, इन्फ्लेशन इस वक्त बहुत बड़ा इशू है हमारा। महंगाई, हर आदमी चीख रहा है, चला रहा है। कुछ मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना और प्रपोजल्स है, मैं वो आपके फोरम से शेयर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। मैं ग्रोअर भी हूँ और एग्री प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो मैं एक मिसाल के तौर पे आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने करेला उगाया और बड़ा उसके ऊपर मैंने रिसर्च करके और बड़े टेक्निकल उससे तरीके, रिवायती तरीकों से हट के अच्छी पैदावार हुई। जाके जब मैं उसको मंडी में बेचने के लिए ले गया तो उसने मुझे कहा कि जी इस पर मैं 10%, आड़ती ने कहा कि 10% कमीशन लूंगा और इसका 1300 रुपये का रेट है मन का। सही है। अच्छा जी, अब मैं 25% हो रही होगी, 75% नहीं हो रही है, रुकी हुई है। तो एक सोर्स जो आपकी थी कि जहां से आपका फॉरेन एक्सचेंज जाता था, वो सोर्स आज भी अभी रुकी हुई है और उसके एक आपको मदद डायरेक्ट से इनडायरेक्ट से आपको मिल रही है। अच्छा, अब आपको काउंटर कहां करना है? अब आप ये देखें कि हम साल से ये कहते हैं कि आपकी इंडस्ट्री को आप प्रमोट करेंगे ना, तो आप उससे काउंटर करेंगे कि यार हमें, आखिर हमारे सामने बांग्लादेश तरक्की करके चला गया, हमारे सामने और कई मिसालें हैं हमारे आसपास की, नाम लेना आप छोड़ें, मुनासिब नहीं है। तो आज गैस नहीं मिल रही है इंडस्ट्रियलिस्ट को,
डॉलर की फ्लक्चुएशन इतनी ज्यादा है कि मैं आपसे कमिटेड हूं कि जी मैं ये जैकेट जो है आपको ये $50 में दे दूंगा और कल को मालूम है कि मैं $60 में भी आपको नहीं दे सकता, मेरी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी बढ़ गई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है कि मैं अपने कमिटमेंट से आगे पीछे हो रहा हूं। तो मैं अगर अपने कमिटमेंट से आगे पीछे हो रहा हूं तो बाकी साहब माफ कीजिएगा, आपने एक दफा अगर डील कर ली ना मेरे साथ दोबारा आप नहीं करेंगे, तो मैं इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी अपनी गुडविल जो है उसको भी लूज कर रहा हूं। थोड़ा सा इसके ऊपर स्टैट्स देख लेते हैं। हाल ही में टेक्सटाइल सेक्टर में अराउंड $1.5 बिलियन के एक्सपेंशन होने जा रही है। देखो बाकर आप उसको ना समझो, मैं आपको लेट मी तो क्वेश्चन इज कि गैस अभी दुनिया में अगर आप ममालिक का हाल देखें इस गैस प्राइस के ऊपर, तो गैस तो वैसे ही बड़ी नापैद हो गई है। गैस वन ऑफ द फैक्टर है, आपको एनर्जी का मसला है, आपको बिजली का मसला है, आप इंडस्ट्रियल लगाने जाएं, आपको इंडस्ट्रियल जोन प्रॉपर नहीं मिलते, उसकी कीमत इतनी होती है कि जो आप इक्विपमेंट्स लगा रहे हैं उनकी कीमत इतनी जितनी लैंड की वैल्यू है। लेट्स ब्रेक इट डाउन, लेट्स मेक इट एन लॉजिकल आर्गुमेंट ना, ऐसे उसको लॉजिक पे बिल्ड करते हैं इसको कि हाँ ठीक है ये स्टैटिक आर्गुमेंट है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं और जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनकी कीमतें ज्यादा हैं कंपैरेटिवली। नाउ व्हाट कैन गवर्नमेंट डू टू हेल्प यू आउट इन दैट, और क्या गवर्नमेंट ने ये करने की तरफ कदम उठाया या नहीं उठाया? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटी सी चीज हो जाती है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स उठा लें और उसकी तमाम चीज़ें देख ले कि जहाँ पे लिटिगेशन से लेके डिसीशंस से लेके आर्बिट्रेशन से लेके इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, अब इन सारे मैकेनिज्म के ऊपर मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, ये देखें कि मीडियम टर्म में भी कोई काम किया गया, कोई ऐसा कमीशन बना कि जनाब ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 140 पर आ रहे हैं दुनिया में या 142 पे आ रहे हैं दुनिया में। अच्छा ये मैं आपको बता दूं, जस्ट टू काउंटर यू लाइव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पाकिस्तान की रैंकिंग इंप्रूव हुई है। इंप्रूव हो के भी सर इट्स जस्ट अ वे ऑफ लुकिंग। अगर आप फैक्चुअल में आपको काउंटर करूं, इसके लिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं ना कि दूसरों की खराब हो गई है तो वो नीचे चले गए। मजे की मैं ये बात बता रहा हूं, दिस इज ये जो कहानी, ये जो आपका आर्गुमेंट है, चले मैं आपको क्विकली बिकॉज़ वी रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूं। पाकिस्तान में कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन हो गया है, घर पे बैठ के कर सकते हैं। रिकॉर्ड कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, रिकॉर्ड आईटी कंपनीज इनकॉर्पोरेशन हो रही हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में देखें तो लिस्टेड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में 100% अबव इजाफा हुआ है। सिमिलर उठा लें, बैंक उठा लें, किसी भी सेक्टर में चले जाएं। नाउ माय क्वेश्चन इज, इफ यू लुक एट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, तो आपको कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स नजर आएंगे बुक्स के ऊपर। जी सर, इन चीज़ों में बाकी एक चीज़ मजीद जो मैं अब आपके प्रोग्राम के तवज्जो से करना चाहूँगा कि जिस तरह ऑफशोर कंपनियों के बारे में भी अहकामात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दे दिए हैं, और ये भी एक खुशाइन बात है कि मईशत को मुस्तहकम करने के लिए ज़रूरी है मनी ट्रेल को रोकना, होंडी के सिस्टम को रोकना, वो तमाम तर इक़दाम हो रहे हैं मौजूदा हुकूमत के अंदर। इसी तरह कैश श्योर कंपनियाँ भी हैं कि ऐसे लोग जिनके घरों से अरबों रुपया निकल रहा है, वो भी तो इस मुल्क के मुजरिम है जिन्होंने हमारी मईशत को नुकसान पहुँचाया। डॉलर्स घरों में, जैसे आप देखें कि हालिया वाक़ई बलूचिस्तान में जो हुआ था, कितने अरब निकले। इस तरह के और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो कैश और कैश डिपॉजिट रखा हुआ है, सेव किया है, जिसमें सोने की ईंटों की ईंटें बनाकर सेव कर लिए हैं, उनके पूरे वो सेव किए। जब से करेंसी चेंज करने की बात आई थी तो उनको ये भी खदशा लग गया कि करेंसी अगर चेंज हो जाएगी तो इतना पैसा कैसे शो हो जाएगा, तो अब वो सोने भी मार्केट से गायब हो गया है। ये वो तमाम चीजें हैं जिनको देखना है हमने आगे चलकर, और उसके साथ साथ अब जो मुआशी सूरत हाल है इसके अंदर गो के हमें ऐसे मसाइल का सामना तो जरूर है, लेकिन इन्हीं हालात में हमने रहना है, इन्हीं हालात में रहते हुए हमने सर्वाइव भी करना है। और इसके साथ अब जो हालिया महंगाई की जहां तक बात थी कि जिस तरह आप देखें कि सर ये कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा यानी कि महंगाई का जो असरात तो उन पर भी पड़ रहे हैं कि 12% तक जरूर महंगी हुई है, लेकिन आप देखें कि वहां जो रॉ मटेरियल है, जहाज की परचेजिंग है, पहले जो 1 टन की जो मार्केट लगती थी $300-350 तक थी, वो $450 से $500 हाई लेवल्स पर चली गई है। तो वो इतनी परचेजिंग के बाद भी फिर भी एक इंडस्ट्रियल जो है वो उसको सर्वाइव कर रहे हैं इसके अंदर। तो हमें भी इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें ऐसी चीजों को भी रोकना है जिनके अंदर इस तरह के मामलात हैं कि जो लोग पैसा स्टॉक जखीरा अंदोजी देखें जनाज की नहीं होती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी नीड टू एड्रेस हियर इज कि अपॉर्चुनिटीज कहां है। हाउ डू यू थिंक एग्रीकल्चर के अंदर या प्राइस कंट्रोल के अंदर, इफ यू इंक्रीज द एग्रीकल्चर आउटपुट, where do you see there are huge opportunities जहां पे अगर गवर्नमेंट ने जिस तरह से मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग की पॉलिसी दी, ऑटो असेंबलर्स की पॉलिसी दी, तो हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड ऑटोज के नंबर आ रहे हैं, मोबाइल फोन असेंबलिंग पाकिस्तान में लग रही है, लिस्टेड कंपनीज आ रही हैं इस सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर के अंदर थोड़ा बताइएगा। देखिए बाकर, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये कोई 2 अल्फाज में इसको नहीं समोया जा सकता। समराइज।
ठीक है, बट हाई लेवल पे कोशिश जरूर करूंगा इसको। We can move forward with that, because you are देखिए, expert in that. देखिए, हम ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्स पर बात कर रहे थे अभी। आप एक एग्रीकल्चर मुल्क हैं, आपके पास ज़्यादातर जो वसाइल हैं, मगर हम बदकिस्मत इस हवाले से हैं कि हम वैल्यू एडिशन को फोकस नहीं करते। बिल्कुल जापान की अगर आप देखें, जापान के पास क्या पैदा होता है? ना उनके पास मिनरल्स हैं, ना उनके पास कोई कम्युनिटीज़ हैं, ना उनके पास क्रॉप्स हैं इतनी ज़्यादा, तो वो सिर्फ दुनिया भर से कचरा इंपोर्ट करते हैं, आयरन ओर इंपोर्ट करते हैं और बेहतरीन किस्म का आयरन स्टील बना के दुनिया को सप्लाई करते हैं। तो आज दुनिया की 7 बड़ी मीशतों में से एक मीशत है वो। इसी तरह हम मेरी नॉलेज महदूद है, मगर सवाल बनता है जरूर, तो मेरे पास अगर कम है तो आप इसमें आपके पास गन्ना लाखों टन के हिसाब से निकलता है, उसकी बायो प्रोडक्ट है एथेनॉल। सही है। एथेनॉल को एज आप उसको ऑल्टरनेट फ्यूल के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन की उसकी जरूरत है। आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स अपने सर, ये बहुत से पहले बात की थी, काम भी किया था। मेरी नॉलेज में है, मगर मैंने ये जब सुना कि ब्राजील में इसको इस्तेमाल करते हैं, व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? या मिक्स करके इस्तेमाल करते हैं, मिक्स करके करते हैं। और ये तजुर्बा जो है तकरीबन 10-12 साल पहले पिकअप हुआ था, लोगों ने काफी कोशिश की, मगर ये कामयाब नहीं हो सका और इसके पीछे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, क्योंकि इसे एक फ्यूटाइल इन्वेस्टमेंट समझा गया। इसके ऊपर रिसोर्स बहुत लग रहे थे। बट दिस इज आल्सो द क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एक्सेलेंस। मैं प्राइवेट सेक्टर मुझे में आएगा, मैं अपने मौजूद पे प्लीज खत्म कर लूं उसको। देखिए, मैं आपके फोरम में हर मेरे ख्याल है कोई तीसरे चौथे प्रोग्राम में ये बात जरूर आती है जो सवाल आपने किया। मेरी ख्वाहिश है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चों को एजुकेट करते हैं, उनको पढ़ाते हैं। हमने एक्सपोर्ट्स के हवाले से जो उनको फोकस करना चाहिए और जो उनको प्रिपेयर करना चाहिए, हमारे पास ऐसे हमारे सिलेबस में ऐसी गुंजाइश नहीं है। हम उनको प्रॉपर एजुकेट नहीं करते। आज दुनिया इतनी सिमट गई, आप कह रहे हैं ना, घर बैठे बैठे आप सारी फॉर्म अपनी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। घर बैठे हमारे बच्चे जो खास तौर पे वो जो नौकरियां तलाश कर रहे होते हैं, वो अगर घर बैठ के 2-4-5 का ग्रुप बन के इस तरह काम करें, वो छोटी छोटी चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के नैरेटिव्स के खिलाफ है। They do not have this narrative. They are very happy with the recent measures, by the way, if you look at their response to that. So individual level के ऊपर is a different debate. I'm telling you the government's policy, जिसमें government ने IT policy को मुरतब किया, पाशा और तमाम तर इदारों के साथ मिलके जो IT सेक्टर के अंदर हैं, and then they are rolling out. Then the important building block that you are missing right now is Special Technology Zone Authority, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेजर है, लेजिस्लेशन भी हो गई है। गवर्नमेंट ने मैं थोड़ा इनको भी पॉलिसी दे दी, आपको सब कुछ दे दिया। बिल्कुल देखा जाए तो देखें, शुरू से बात तो जरूर की कि अब वहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी अरफा करीम जो बनाया गया था लाहौर, उसके बाद अब सिंध के अंदर सूबाई सतह पर भी ये काम तो हो रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन इस हवाले से हम वर्ल्ड वाइड ग्लोबल दुनिया की जो बात करते हैं उसके अंदर हमारे स्टैटिक एनालिसिस लेटेस्ट अपडेट भी हमारे साथ रहेगी। इसके साथ हमें यहाँ पर जो एक चूंकि बात हो रही थी कि यहाँ की मईशत के इस्तेहकाम की और कौन से ऐसे जराए, उसमें टूरिज्म एक बहुत बड़ा हमारा एक सेक्टर था कि जिसके अंदर कोविड की वजह से चूंकि उस पर वो इंप्लीमेंट्स, वो सहूलियात, वो मामला तो हम ना कर सके। लेकिन बाकी एक चीज और बहुत अहम है कि आज हम सऊदीया को फोकस करते हैं या टर्की को या स्पेन को या इटली को, कि टूरिज्म वहां पर है तो वहां की मीशत में बहुत ज्यादा उसके यानी अच्छे असरात मुरतब होते हैं। और सऊदीया के अंदर भी देखें तो हज उम्रे की वजह से बहुत सारी पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इसी तरह हमें पाकिस्तान के अंदर भी 2 चीजें ऐसी मिली हैं, और भी हो सकती हैं, 2 जो मेरे नॉलेज में, जिनकी मेरे पास इसकी रिसर्च है, कि जिनमें हमारे पास देखें अब करतारपुर में गुरुद्वारा जो था गुरु नानक साहब का, वो बहुत अच्छा इक़दाम था कि वो कॉरिडोर बना दिया गया। लेकिन अभी भी ननकाना साहब में जो उनके मजहबी ऐसी मुकद्दस जगह अकलियतों की वहां पर वो हैं। और बलूचिस्तान के अंदर कुल मलीर पर जो नानी अम्मा का मंदिर, ये हिंदुओं की बहुत ही मुकद्दस जगह। यहाँ पर अगर हम टूरिज्म के हवाले से अगर उनके मजहबी मामलात को मद्देनजर रखते हुए अगर हुकूमती सतह पर सहूलियात दी जाए कि दुनिया से आने वाले लोग अगर आए तो वो जरूर आएंगे, कैसे भी हालात हो, क्योंकि इन मामलात में वो हालात नहीं देखे जाते। ठीक है, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बेहतरी की गुंजाइश यहाँ पे मौजूद है, खासतौर पर रिलीजियस टूरिज्म में। जी बिल्कुल, इसके अंदर। और ये हमें खुशकिस्मती पाकिस्तान की कि 2 ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी मुकद्दस जगह जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी। योर फाइनल वर्ड शेयर करने जा रहा था कि आपने आईटी की पॉलिसी के हवाले से बात की। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पॉलिसी बना दी, मगर ये कितने लोगों को पता है? खास तौर पे हमारा वो बच्चा, वो तबका जिसने आगे आज अपने कैरियर के हवाले से अपने कोई डिसीजंस देने हैं, क्या उस तक ये बात पहुंच गई है? कि उस तक हमें कोशिश ही करनी है। मैं इस पर इतराज नहीं कर रहा, मेरा जो सजेशन है वो ये है कि आप इसमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस दें लोगों को, ताकि। और फिर दूसरी बात, हम जो बात कर रहे थे कि रोशन डिजिटल अकाउंट से हमारी बात शुरू हुई थी ना, इंडिया ने अपने इलिटरेट लेबर के ऊपर बैन लगा दिया है।
صحیح ہے. ہمارا 10 آدمی مل کے اتنا کماتا ہے جتنا ان کا ایک آدمی کماتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں, آپ کے تعلقات مڈل ایسٹ کے ساتھ جیسے ہیں اس پہ آپ کوشش کریں کہ اپنا پڑھا لکھا آدمی, پڑھا لکھا طبقہ زیادہ سے زیادہ بہت ضروری ہے, تو وہ آپ کو زیادہ ریمیٹنس ملے گی. لیبر کی پروڈکٹیوٹی ایفیشینسی پاکستان میں جو ہے وہ بہت نیچے ہے ایز کمپیئر ٹو ادر. بہت جو پڑھا لکھا نہیں ہوتا وہ آپ کے لیے کہیں کہیں ناموشی کا باعث بنتا آئی ہے. تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. آن دیٹ نوٹ صحیح صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. راشد صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ندیم صاحب اٹس ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین آج کا پروگرام بہت ہی ایکسٹینسو رہا. ہم نے ڈسکس کیا اکنامی کے کی میجرز, ریمیٹنسز کے اندر گروتھ, پروڈکٹیوٹی از دا کی آرگومنٹ. یہاں پہ آپ کو پروڈکٹیوٹی انہانس کرنے کے لیے ایجوکیشن امپروو کرنی ہوگی, اسکل ڈیولپمنٹ امپروو کرنی ہوگی. گورنمنٹ آپ کو انیبلنگ انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتی ہے, جس طرح بتایا بھی کہ آئی ٹی پالیسی نہیں آئی ہے, سافٹ ویئر ہاؤسز کو سپورٹ دی جا رہی ہے, اور ایک انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے آپ لوگوں کو سیلف سفیشینٹ بنائیں, اور وہ فری لانسر بھی ہو تو اسے پیسے ٹرانسفر کرنے میں آسانی ہو, اپنا کاروبار سٹارٹ کرنے میں آسانی ہو, اور جو بنیادی سہولیات ہیں اس کی مارجنل فائنینسنگ اور خاص طور پہ جو بینکنگ سیکٹر کا ایکسس ہے وہ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو فارمرز ہیں, ایگریکلچر سیکٹر میں فائنینسنگ ہے اس کو مزید مربوط بنانا ہوگا, وہاں پہ مزید ایونیوز کریٹ کرنے ہوں گے. ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا ہے کہ کسانوں کے لیے ٹریکٹر کی فائنینسنگ اور کراپ بیس فائنینسنگ امپروو کی گئی ہے, لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ڈیولپمنٹ کی گنجائش موجود ہے. جی ڈی پی گروتھ ریٹ آف دا کنٹری از امپروونگ اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہاں سے کموڈٹی پرائسز شاک ایک بار نکل جائے تو اکانومی کین اگین بی آن دا پاتھ آف گروتھ. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہو چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.